Hello friends, today we will see the concept of indicator random variable. So indicator random variable for event A is defined as the random variable which have only two values, either 0 or 1. Okay, an indicator random variable for event A is defined as the random variable which has only two values, either 0 and 1. So indicator random variable is the random variable obviously, but the speciality of indicator random variable is that it has only two values. एक तो 0 होगी, नहीं तो 1 होगी. Now when event A takes place, then value is 1, else 0. Okay, if the event A takes place, then value is 1, else 0. And this indicator variable is denoted by IA. जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, this IA denoted by IA, and expectation is denoted by EA. Okay, indicator random variable is denoted by IA and expectation is denoted by EA. The expectation of random variable IA is using hired. Okay, the expectation of random variable IA is using hired. Now जो लास्ट लेक्चर में हमने एक हायरिंग प्रॉब्लम वाला डिस्कस किया था, हायरिंग प्रॉब्लम, तो उसके लिए रैंडम वेरिएबल जो है उसके लिए फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल लिया है IA. सो एक्सपेक्टेशन E ऑफ IA, इसका मतलब क्या है? E ऑफ IA इसका मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन इज डिनोटेड बाय EA. इसका मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ IA यानी इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल. ओके, सो E इज इक्वल टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ IA. सो IA की वैल्यू कितनी होती है? I इज इक्वल टू 1 to n, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n IA. Okay, summation of I is equal to 1 to n IA. So IA is nothing but the expectations. Sorry, it is denoted by indicator random variable, and EA is nothing but the expectations. So how they are related? So E of IA is equal to E of IA की वैल्यू कितनी रहेगी? I is equal to 1 to n IA. So here summation of I is equal to 1 to n E of, that is expectations of IA. Summation of I is equal to 1 to n 1 upon I. Okay, IA means 1 upon I. So 1 upon I is nothing but 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 up to 1 upon n, because what we have given 1 upon I. Okay, 1 upon I, that is IA given. IA is given 1 upon I. So I की वैल्यू वैरी हो रही है आपकी 1 to n से, तो क्या आएगा इक्वेशन? 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 up to 1 upon n. So here expectations of IA is equal to log n plus big O n. Okay, log n plus big O n. तो big O n किसका हुआ है? जो 1 upon 1 है, that is big O 1, और जो स्टार्ट हो रहा है आपका 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4, so that is up to 1 upon n. तो ये जो पूरा वैल्यूज़ है उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रहेगा आपका log n. दैट मीन्स एन इंटरव्यू, आपने अगर इंटरव्यू लिया है n कैंडिडेट्स का, सो एक्चुअली log n कैंडिडेट्स बी हायर्ड. ओके, इफ दिस concept we apply to the hiring problem, then we can easily say that if the boss take interview of n candidates, then what is the possibility of hiring the candidates? So log n number of candidates can be hired if we take the interview of n candidate. Okay, by using random variable we can say that log n number of candidates can be hired by interviewing n candidate. Now one example is given here. सपोज़ वी टॉस अ कॉइन. हम क्या करते हैं? कॉइन को टॉस करते हैं. तो कॉइन की दो साइड्स होती है, एक तो हेड होता है, नहीं तो टेल होता है. तो सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, आइदर हेड और टेल. सो प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2, और टेल की कितनी होती है? 1/2. ओके, प्रोबेबिलिटी, हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2, और टेल की कितनी होती है? 1/2. 50-50% है, तो ऑब्वियसली 1/2 1/2. आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड गिरने की चांसेस कितने हैं? 50%, और टेल के कितने हैं? 50%. सो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू, दैट इज टेल इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2. नाउ इफ आई से
कि जो रैंडम वेरिएबल है आई ए वो डिनोट करते हैं हम 1 एंड 0 से। यू ऑलरेडी नो, आई ऑलरेडी टोल्ड कि रैंडम वेरिएबल, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल की सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ रहती है, एक तो 1 रहता है नहीं तो 0 रहता है। तो अगर मेरे पास मैंने कॉइन को टॉस किया है तो एक तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी नहीं तो 0 रहेगी। तो हम ऐसा समझ के चलते हैं कि अगर हेड आता है तो मैं 1 कंसिडर करूँगी और अगर टेल आता है तो मैं 0 कंसिडर करूँगी। क्यों? क्योंकि रैंडम वेरिएबल की सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ रहती हैं, आइदर 1 और 0। तो मैं क्या डिसाइड करूँगी कि कॉइन का अगर हेड गिरता है तो 1 आउटपुट आएगा और अगर टेल है तो 0 आउटपुट आएगा। तो इसके हिसाब से हम एक्सपेक्टेशंस इन वन टाइम टॉस, एक बार अगर हमने टॉस किया तो क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगा, सो दैट वी गेट द आंसर एज 1/2। ओके, सो इज इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। ओके, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। सो 1 इज इक्वल 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के लिए इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो 1 इंटू 1/2। ओके, 1 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है हमारे लिए 0, क्योंकि टी को हमने किससे डिनोट किया है, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल 0 से। तो यहाँ पे 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज़ व्हाट, इट इज़ 0 एंड पी आर की प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज़ व्हाट, इट इज़ 1/2। ओके, सो 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 0, क्योंकि टी के लिए अगर टेल है तो आई ए की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे टेल अगर है तो आई ए की वैल्यू 0 है, लेकिन हेड है तो आई की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 है, इसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो वैल्यू रहेगी। सो 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 0, सो इट इज़ 1/2, दैट इज़ हाफ। सो एक्सपेक्टेशंस फॉर कॉइन टॉस, जो एक बार अगर उसको कॉइन को अगर टॉस किया है तो इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल से अगर हम एक्सपेक्टेशन देखेंगे सो आंसर बराबर आता है हमारा 1/2। सो दिस इज़ अबाउट इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल। While writing the answer of indicator random variable, you have to write down this derivation. This is very important, this derivation. E of I is equal to E into bracket summation I is equal to 1 to n and IA up to this। और उसके बाद एक कॉइन टॉस का आपको एग्जांपल देना है और वो एग्जांपल हो जाने के बाद आपको उसका एक्सपेक्टेशन फॉर वन टाइम टॉस को सॉल्व करना है।